So next topic is code inequalities. So in code inequalities, we have certain codes which we have to convert. So as we'll do it with the help of this question. So given answer based on the following options. These options we will be using later on. So let's see. A option is if only one conclusion is true. If B option is only conclusion 2 is true. C if either 1 or 2 is true. D neither 1 nor 2 is true. So in the following questions, the symbols percent, star, these symbols are used. All symbols define the following meaning. So A percent mean B means A is smaller than B. So percent sign signifies smaller than, right? This delta sign signifies less than or equal to. So less than or equal to, right? This is the symbol of less than or equal to. Hashtag sign signifies equal to. And sign signifies greater than B, so greater than. And this sign signifies either greater than or equal to, so greater than or equal to. So in this way we have written the symbols. Next, A percent B, a statement is given A percent B, percent sign is less than, so A is less than B, comma C is greater than equal to D, comma B is equal to D, right? So B is equal to D, C is greater than D, so C is greater than B also, and B is greater than A. So in chain sequence, if we want to arrange, so A is greater than B, B is equal to D, and D is lesser than equal to C. So in this way we can arrange these three statements, right? So conclusion is B percent D. So B is less than D, first conclusion. B percent C, sorry. So B is less than C, first conclusion. Second conclusion, B has C. So B is equal to C. So we have to say either B is less, which of the conclusion is true. So as we can see from this chain, so here B is equal to D is less than equal to C. So can we say B is less than equal to C? Because B किसके इक्वल है, D के इक्वल है, और D लेसर देन इक्वल टू C है, तो D C के इक्वल हो भी सकता है और छोटा भी हो सकता है. तो B C से छोटा भी हो सकता है और इक्वल भी हो सकता है. तो इसका मतलब या तो ये स्टेटमेंट सही होगा या ये स्टेटमेंट सही होगा. तो ईदर कंक्लूजन 1 is true or conclusion 2 is true. So option C is correct. So either option is correct. So in this way we are going to solve these questions. Very easy. So simple questions. Just convert these inequalities into these symbols and then get the conclusion. Next question, let's take. So next question we have A percent B. So A is less than B, comma B has C. So B is equal to C, comma C greater than equal to D. So C is greater than equal to D. So if we arrange it, so A is less than B, B is equal to C, and C is greater than equal to D, right? In this way it is there, right? So same sequence, there is no need to arrange it, right? So next conclusion number 1 is A and D. So A is greater than D. Second conclusion is B is lesser than equal to D, right? So if we go with this chain, right, A and D, so A is here, and D, so lesser than B is equal to, and then this opposite sign, two signs comes in opposite direction, right? First one is this. अगर हम यहाँ से चलना स्टार्ट करें तो ये छोटा है, कोई दिक्कत नहीं है, इज इक्वल टू आया, कोई दिक्कत नहीं. फिर ये साइन उल्टा हो गया, तो मतलब कोई रिलेशन नहीं निकल सकता इन दोनों के बीच में, राइट? ए और डी के बीच में कोई रिलेशन नहीं निकल सकता. क्यों? क्योंकि बी सी के इक्वल है और ए बी से छोटा है. पर ये सी क्या है, ये सी, ये साइन दोनों आपस में अपोजिट डायरेक्शन में आ गए ना, दोनों ऐसे डायरेक्शन में आ गए, तो इसका मतलब कोई रिलेशन नहीं निकल सकता. तो ये कंक्लूजन का तो हम कुछ कह नहीं सकते. बी और डी का देखते हैं, तो बी से चले हम सी, और सी वापस ये देखो इज इक्वल टू से ये ग्रेटर देन आ गया,
है ना। अब C ग्रेटर देन इक्वल टू D हो सकता है, मतलब ये है क्या चीज, ऐसे लिखा हुआ है ये ऐसे है, तो B लेस देन तो हो ही नहीं सकता कभी भी, D से B लेस देन तो हो ही नहीं सकता, दोनों कंक्लूजन गलत है, इसका मतलब ऑप्शन डी इज करेक्ट। सो ऑप्शन डी मतलब नीदर A नॉर B इज करेक्ट। सो ये हमारा ऑप्शन हो गया कि दोनों ही कंक्लूजन गलत है, क्योंकि देखो दोनों ही कंक्लूजन इनइक्वालिटीज को फॉलो नहीं कर रहे। जब भी दो साइन क्रॉस में आ जाए या अपोजिट डायरेक्शन में लॉक हो जाए तो मतलब वो हम कुछ नहीं कह सकते उसके बारे में, छोड़ दो उसको कंक्लूजन को वहीं पे। और यहाँ पे तो एकदम ही रिवर्स हो रहा है, हम कह सकते हैं B इज ग्रेटर देन इक्वल टू D, ये हम कह सकते हैं, जबकि कंक्लूजन तो एकदम रिवर्स आ रहा है, तो दोनों कंक्लूजन क्या हो गए, गलत हो गए। तो इस तरह से हम लोग इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इनइक्वालिटीज पे बेस्ड। सो इनइक्वालिटीज में देखो, इन द फॉलोइंग द सिंबल्स आर यूज। अब सिंबल्स दिए हुए हमको, डॉलर का मतलब है नॉट लेसर देन क्यू। सो नॉट लेसर देन मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू क्यू, तो ग्रेटर देन और इक्वल टू, नॉट लेसर देन मतलब ग्रेटर देन भी हो सकता है या इक्वल भी हो सकता है। हैश, हैश का मतलब क्या है, ग्रेटर देन क्यू, नॉट ग्रेटर देन क्यू। सो नॉट मतलब वही, लेसर देन इक्वल टू हो सकता है। इसका मतलब क्या है, थर्ड सिंबल, इसका मतलब एट द रेट। सो एट द रेट का मतलब क्या है, मीन्स नीदर स्मॉलर नॉर इक्वल टू, तो ना तो स्मॉलर है ना इक्वल है, तो मतलब क्या होगा, ग्रेटर होगा। देखो रिवर्स चल रहा है आपकी वॉइस में, नॉट नॉट लगा के कह रहा है ये। सीसी, सीसी का मतलब क्या है, नीदर ग्रेटर नॉर इक्वल टू, मतलब लेसर देन होगा। परसेंट, परसेंट का मतलब क्या है, नीदर ग्रेटर नॉर स्मॉलर, मतलब इक्वल होगा, राइट। तो ये सारे सिंबल्स को हमने कन्वर्ट कर लिया। अब क्वेश्चन देखते हैं। स्टेटमेंट 1, H%J, सो H इज इक्वल टू JCCN, तो J लेस देन N, CC मतलब लेस देन, N एट द रेट R, सो N एट द रेट मतलब ग्रेटर देन R, ये है। अब कंक्लूजन क्या कह रहा है यहाँ से, R%J, तो R इज इक्वल टू J। दूसरा कंक्लूजन कह रहा है H एट द रेट J, H एट द रेट मतलब ग्रेटर देन J। तो देखो R और J है, तो पहले R यहाँ पे, J यहाँ पे, तो देखो दोनों के अगर हम यहाँ से R से चलना स्टार्ट करें तो दोनों के बीच में क्या आ रही है, ये दोनों को साइन अपोज में आ रहे हैं, ऐसे आ रहे हैं ना अपोज में, तो इसका मतलब हम कुछ नहीं कह सकते इसके बारे में, इस कंक्लूजन के बारे में। सेकंड स्टेटमेंट क्या कह रहा है हमको, सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है H एट द रेट J, तो H इज ग्रेटर देन J, तो H तो क्या है, J के इक्वल है, तो ये वाला वैसे ही गलत हो गया, है ना। तो वो फर्स्ट वाले से H, तो इसका मतलब क्या है, दोनों कंक्लूजन गलत हो रहे हैं। तो ऑप्शन कौन सा वाला सही होगा, ओनली वन इज ट्रू, ओनली थर्ड इज ट्रू, ये तो सारे ऑप्शन गलत है। तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं, दोनों कंक्लूजन क्या है, गलत है। यहाँ पे हमारे दोनों कंक्लूजन हमारे यहाँ पे गलत है, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट। इसमें अगर हमारे पास कोई ऑप्शन होता कि बोथ द कंक्लूजन आर नीदर ए नॉट सेकंड इज ट्रू, तो हम वो वाले पे टिक करते हैं। अब देखो इसी पे अगर हम देखें, कई सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, तो आप लोगों को समझ आ ही गया होगा। एक और प्रॉब्लम देख लेते हैं यहीं से, ACB, मतलब कि इसका सिंबल क्या है, नॉट स्मॉलर देन, मतलब स्मॉलर देन नहीं है, मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू है। परसेंट का मतलब क्या है, नीदर स्मॉलर नॉर इक्वल टू, ना तो स्मॉलर है ना इक्वल है, मतलब क्या है, ग्रेटर है। नेक्स्ट क्या है, अगर हम नेक्स्ट पे जाएं, माइनस, तो माइनस का मतलब क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल टू, नीदर ग्रेटर देन नॉर इक्वल टू, मतलब कि लेस देन होगा। अगर हम नेक्स्ट जाएं, एंड, तो नॉट ग्रेटर देन बी, बी से बड़ा नहीं है, मतलब क्या है, लेसर देन और स्मॉलर इक्वल टू होगा। नेक्स्ट है एट द रेट, एट द रेट नीदर ग्रेटर देन नॉर स्मॉलर देन, मतलब इज इक्वल टू होगा। अब हम क्वेश्चंस को देखें, क्वेश्चन क्या है, P एट द रेट P एंड T, सो P लेसर देन इक्वल टू T, कॉमा T एट द रेट R, सो T एट द रेट मतलब इज इक्वल टू R, कॉमा R C Q, तो R इज ग्रेटर देन इक्वल टू Q, कॉमा R इज ग्रेटर देन इक्वल टू O, O है ये, कॉमा O% K, तो O इज इक्वल टू K, O% K मतलब परसेंट मतलब O इज ग्रेटर देन K, ठीक है। अब देखो हमारे पास कंक्लूजन क्या है, एट द रेट, तो R एट द रेट P,
सो आर इज इक्वल टू पी कॉमा आर परसेंट पी, तो आर इज ग्रेटर देन पी कॉमा के माइनस टी, सो के माइनस टी मतलब के इज लेस देन टी कॉमा ओ एंड टी, तो ओ एंड मतलब लेस देन इक्वल टू टी। तो हमको बताना है इनमें से कौन सा कंक्लूजन सही है। तो देखो आर इज इक्वल टू पी, आर इज ग्रेटर देन पी, तो पहले आर और पी पे देखते हैं। आर यहाँ पे, पी यहाँ पे, तो आर या तो बड़ा होगा या इक्वल होगा। देखो इज इक्वल टू और ग्रेटर देन लेसर देन ये आ रहा है, तो हम क्या कह सकते हैं, आर ये कुछ इस तरह से है, तो आर या तो ग्रेटर देन होगा पी से या इक्वल होगा, तो इधर इन दोनों में से कोई एक सही होगा। इन दोनों में से टी और के पे जाएं तो के कहाँ है, यहाँ पे, ये लेस देन, फिर टी पे आए तो टी क्या होगा, बड़ा होगा या इक्वल होगा। टी तो हमेशा बड़ा ही होगा के से, टी बड़ा होगा के से, तो ये वाला सही है, थर्ड वाला कंक्लूजन। टी इज ग्रेटर देन इक्वल टू ओ, टी इज ग्रेटर देन इक्वल टू ओ, तो ये वाला भी सही है। तो इसका मतलब इन दोनों में से कोई एक होगा और ये दोनों सही है। ईदर फर्स्ट और सेकंड एंड थर्ड एंड फोर्थ आर ट्रू, सो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होता अगर ऑप्शंस में पूछा जाता तो इस तरह से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं इसमें। तो आई होप आपको समझ आया हो। सो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब इट and press the bell icon to see the upcoming notifications. In the next video we'll be discussing series, so hope to see you there. Bye bye, take care.